सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो आज इस साहित्य मंच कार्यक्रम में कविता पाठ करने के लिए हमारा आमंत्रण पत्र को स्वीकृत करते हुए आए हुए हैं। 6 कवि जैसे अंग्रेजी भाषा से अमलान ज्योति गोस्वामी जी, हिंदी भाषा से नवनीत नीरव जी, मैथिली भाषा से भावना झा जी, पंजाबी भाषा से डॉक्टर करणजीत सिंह कोमल जी और संस्कृत भाषा से संगीता शर्मा जी, और हमारा उर्दू कवि भी आने वाली है, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाए। और इन सभी कवियों को इस विश्व कविता दिवस अवसर पर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि साहित्य अकादमी की प्रशासनिक उप सचिव श्रीमान कृष्णा रविंद्र की मोहने जी से अनुरोध करना चाहता हूं इन सभी कवियों को सम्मान करें हमारा गमछा से जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कृष्णा रविंद्र की मोहने जी। संस्कृत में ऐसा कहा जाता है कि निरंकुशाः कवयः, क्योंकि इसी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी वर्णन में कोई चुन नहीं जाता। एंड the eyesight of a poet goes where even a sunlight may not be reaches. Such is the sharpness of a poet. And it is also said that on the occasion of World Poetry Day, I would like to even bring a few facts about why we are celebrating it and what is the reason, the purpose behind it. As you know, as Wordsworth said, Ruhi Malik ji जानते हैं that poetry is a spontaneous overflow of thought. Later he added, Wordsworth himself added that in tranquility, he himself added that word. So that's why practice throughout the history in every culture and on every continent, poetry speaks to our common humanity and our shared values, transforming in the simplest of poems into a powerful catalyst for a dialogue and peace. As all of us know, that World Poetry Day celebrates one of the humanity's most treasured form of cultural and linguistic expression and identity. And as you know, UNESCO has declared 21st March as a World Poetry Day. Way back in its executive meeting in Paris in way back 1999. You know the purpose why UNESCO has announced as 21st March as a World Poetry Day. The reason is this: with the aim of supporting linguistic diversity through poetic expression and increasing the opportunity for endangered languages to be heard. Its purpose is to promote the reading, writing, publishing and teaching of poetry throughout the world, and the original
that, I quote, give fresh recognition and impetus to national, regional and international poetry movements. These are the aims and objectives for which UNESCO has announced 21st March as a World Poetry Day. But at the same time, through the World Poetry Day, is an occasion to honor poets, revive oral traditions of poetry recitals, promote the reading, writing, teaching of poetry, foster the convergence between poetry and other arts, such as theatre, dance, music, painting, and raise the visibility of poetry in media. As poetry continues to bring people together across continents, all are invited to this World Poetry Day. With these few words, it's my honor and privilege to welcome you, all of you, to this World Poetry Day on behalf of Dr. K. Srinivasarao, Secretary, Sahitya Akademi. So first and foremost, as per the alphabetical order, may I request Amlan Jyoti Goswami ji, who is representing today English rather than his mother tongue Assami. Amlan Goswami ji has written two widely reviewed books of poetry, that is River Wedding and Vital Signs. His works has appeared on the street walls of Christ Church, buses in Philadelphia, exhibitions in Johannesburg, and an e-gallery in Britain. He has reviewed poetry for modern poetry in translation and review more than 31. And he has also translated poetry from Assami into English and has read at various places including Delhi, Mumbai, New York, Chandigarh, Boston and Bangalore, etc. He grew up in Guwahati and lives in Delhi. With a few words, may I request Sri Amlan Jyoti Goswami to kindly present his poetry on this occasion. Thank you. Am I audible? Yeah. Thank you once again for inviting me, and it's very nice to be with fellow poets and to be in the presence of lovers of poetry. I think the introductory remarks are sufficient for us to kind of go straight into the poems without further ado. I write in English. I think in English, Assamese, Bangla, Hindi. So therefore my English poetry is also not typical English Wordsworth poetry, so to speak. And I think I'm very happy about it. So I look at it as a great advantage that we come from a country with so many languages, and in that sense, my English is influenced by the fact that I speak 4 languages, and it's all khichdi. That khichdi is very good. No, but on this occasion, poetry has no language. Indeed. Indeed. So on that note, my first poem is it's actually like folklore, as you say, oral tradition. It's about a little pond, a little tank, water body, where I grew up in Guwahati, and somehow I keep going back to that in various forms. I feel like Seamus Heaney talks about his bogs. So this is my kind of globe. It's much more beautiful, I guess, than the boglands he talks about. So I looked at this as folklore. This one is called A Rain Tree Falls in Digholi Pukuri. Digholi Pukuri is the name of the pond. In Bangla is Pukur, in Assamese is Pukuri. You heard evening birds, a pandemonium of whispers. Early mornings, a sad old man sleeping under it, dreaming hot May. Under the big rain tree lived a night forest. The strange woman uttered deep profanities. Do you know where fruits come from? Come here, I will make you breathe.
The moon just hid the stars. Always overdressed, her rags a mountain even in summer. Another rag added the next time you saw her. Leaves above, leaves under her feet. When the big tree fell, everyone came. Children from long ago after school saw ants crawl out, birds hatching, a snake slithering into the watery dark where every tree became a story. My second poem is closer to where I live and have lived. So I have now lived more number of years in Delhi than in Guwahati. So this one is called Dollar Ki Chaat. So Dollar Ki Chaat for lovers of food in Delhi is both an experience as well as a moment of reflection, because you don't get Dollar Ki Chaat in summer. You get it only at a certain time in winter, and that is the beauty of it, I guess. So here goes Dollar Ki Chaat. Ever tasted wandering mist, soft as foam, delicate as feather, melting the moment the tongue feels it. Standing at Gariba by a cart, his treasure covered in a veil, a faint memory, strawberry and cream in Wimbledon. Nothing compares to this. He scrapes a little yellow from the sea of white and places inside a cup. It will all disappear in a moment. Will the winter air take hold? Will it evaporate like moisture? But it stays in your tongue long after the last meal, lingering your insides like a passion. He shows his number as you move on. There are more like him, standing with little carts, each claiming the original recipe. Who was Dollar? The inventor, the chef, the one who saw wisdom in a dish, who learned it from a traveler, a shocked lama, or Ibn Battuta, or perhaps just grandmother? Dollar is wealth, and you need not look for more once the jar is tasted, once your tongue savors meaning. Why chart? There is no salt here except your tears, no chili or garam masala. Perhaps the inventor smiled at the irony. You lick it, that's what chart is about. You let your tongue run through it and let it disappear without looking, without opening your eyes. Your heart, if you have any, gets it. When you look to pay, he smiles, says it's just 80 rupees as a token. The rest, we know, is priceless. Last poem for now. It is called I Will Have Guavas in My Poem. I will have guavas in my poem and raw mangoes, local red Himachali apples, delicately balanced on a pyramid of hope. The rains will come on time this year. It will snow, just so much, not too hard or soft. Luscious grapes will dangle green and black from my fingers. A king's dessert in my humble kitchen abode. My poem will smell guava from a mile. When you crack it open, pomegranate rubies will glisten attention, juicy on the tongue, red and purple like a wild berry. A handcart of words will stand by the roadside. On a Sunday evening,
birds chirping early spring. The winter is not done yet. My poem will have a door sign and warm lights, glowing who lives where, showing the way to lost strangers in dusty worlds of evening. My poem will see new flags displacing old ones. Hear busy cars honking at pedestrians who are merely trying to cross the street. There will also be a little space for tea, mixed with adrak and ilachi. And you need not nibble a word more to get from there to here. There will also be aloo tikki in my poetry. Kids playing football with used Pepsi cans, causing an enormous racket, like evening birds coming home. A winter fire, where chowkidars huddle around cricket scores. I must not hurry. They will knock at my door, so open. I have painted my walls white, so you remember the sun. Shadows lurk, seasons turn, people wander. Without all this, what is the use of my poetry? Thank you so much, Goswami. I think aloo tikki is also there in your poetry. Because, as you know, a poet always remains as a prakriti premi. He is a lover of nature. Because once Rabindra Tagore said that had he not gone to Himalayas at that very tender age, at the age of 9, along with his father Rabindra Tagore, he must have not become a great poet as today the entire world witnesses. So that's why the poet should always be mirchi masalas. He should carry. Thank you so much. You are really 21st century English poet. Thanks so much. Now we shall अभी आप लोग सुनेंगे हिंदी भाषा में कविता पाठ, जिसके लिए हमारा बीच उपस्थित है प्रख्यात जाने वाली हिंदी कवि नवनीत नीरव जी, जिन्होंने MBA कर चुके हैं और वो कहानी कविता संग्रह अब तक लिख चुके हैं। एक कहानी संग्रह दुखांत और एक कविता संग्रह मन गीला नहीं होता है, और कई इनका रचनाएं दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में प्रकाशित हो चुके हैं और वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था में बाल साहित्य के प्रकाशन और प्रसार में जुड़े हुए हैं। इन शब्दों के साथ आपको स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आप अपनी कविता पाठ प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार, शुभ संध्या। हार्दिक धन्यवाद साहित्य अकादमी का, साथ ही कवियों का और आप सभी का जो आप अपना कीमती वक्त निकालकर हम सभी को सुनने के लिए आज विश्व कविता दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। 2-3 कविताएं पढ़ना चाहूंगा बिना किसी भूमिका के। पहली कविता का शीर्षक है कुछ गुमशुदा सामान। हर सुबह ढूंढा करता हूं मैं ऑफिस की चाबियां, पर्स, घड़ी और न जाने कुछ कुछ। थोड़ी देर बड़े संयम से खोजता फिरता हूं इधर उधर, अपने दिमाग को बार बार रिवाइंड करते हुए, हाँ शायद यही तो रखा था कल। फिर थोड़ी हड़बड़ाहट से भागता फिरता हूं बीतते समय को देख, शायद आज ऑफिस के लिए लेट न हो जाऊं। घड़ी जो अब तक सुबह से ही अलसाई थी, अचानक तेजी से आ जाती है उसमें, और हताशा मुझ में। कभी किताबों की शेल्फ टटोलता हूं, कभी बेड के तकिए उलटता हूं, कभी सोफे की दरार झांकता या फिर मेज पर अखबार खंगालता। एक सामान की खोज में न जाने कितने खोए सामान मिल जाते हैं, जिन्हें भूला समय पिछले हफ्ते।
खुद पर खींचते हुए कभी पश्चाताप से, कभी खेद जताते हुए बड़बड़ाता हूं, यार इतना भुलक्कड़ कैसे हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था, और न जाने कितने सामान बिखेर जाता हूं। कई बार तो ऐसा भी होता है, सामान सामने होते हैं और दिखाई नहीं देते। मन तो ऑफिस के रास्ते की ट्रैफिक पर फंसा होता है ना, और फिर वो मिल जाता है जो शायद गुमा नहीं था। पहले अफसोस करता हूं, फिर शर्मिंदा होता हूं, एक नजर दौड़ाता हूं दीवार पर टंगी मुस्कुराती घड़ी की ओर, जो कह रही होती है जाओ आज छोड़ दिया तुमको। एक लंबी सांस लेकर हल्का करना चाहता हूं खुद को, फिर कमरे से बाहर निकल जाता हूं और बिखरे सामान वैसे ही पड़े होते हैं जिनमें मुझे कल फिर खोजना होगा कुछ खूबसूरत शाम। दो छोटी कविताएं। दूसरी कविता का शीर्षक है याद। याद वो शायद समय ही था जिसके प्रभाव में हम भी आ गए। वो शायद समय ही था जिसके प्रभाव में हम भी आ गए। मुमकिन है कि अब न तो मैं और न ही तुम एक दूसरे से मुखातिब होंगे। वो शायद समय ही था जिसके प्रभाव में हम भी आ गए। मुमकिन है कि अब ना तो मैं और न ही तुम एक दूसरे से मुखातिब होंगे। एक अनजाने जंगल से अपनों की बस्ती में आन बसा हूं जरूर, पर मन खाली है। तुम तो शायद अंधेरे में भूल गई होंगी। तुम तो शायद अंधेरे में भूल गई होंगी, पर तारों से पूछ के बताना जरा मेरी बस्ती का कौन सा कमरा रात भर टिमटिमाता है। पर तारों से पूछ के। तीसरी कविता अकेलापन। अकेलापन सुकून देता है। अकेलापन सुकून देता है। कुछ लोग बेबाकी से या शायद प्रभाव बनाने के लिए सीधे सीधे कहकर निकल जाते हैं। अकेलापन सुकून देता है। कुछ लोग बेबाकी से या शायद प्रभाव बनाने के लिए सीधे सीधे कहकर निकल जाते हैं। जब जब मैंने सोचा अकेले में अपने लॉन की बेंच पर बैठकर, तब तब मेरी नाव जिंदगी की यादों के भवन में फंस जाती है। जब जब मैंने सोचा अकेले में अपने लॉन की बेंच पर बैठकर, तब तब मेरी नाव जिंदगी की यादों के भंवर में फंस जाती है। शायद अकेलापन मन को रोकता है अतीत के चित्र दिखाने के लिए। शायद अकेलापन मन को रोकता है अतीत के चित्र दिखाने के लिए, पर जिंदगी उसी की ढलानों पर सरपट दूर निकल जाती है। पर जिंदगी उसी की ढलानों पर सरपट दूर निकल जाती है। अभी अमरेंद्र जी ने पूछा कि आप दिल्ली से हैं। अमलान ज्योति जी, सॉरी। तो मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले से ताल्लुक रखता हूँ, और पलायन और रोजगार ये सारी चीजें हैं, हम सारे लोग वाकिफ हैं, जिसकी वजह से शायद दिल्ली अभी फिलहाल वर्तमान का ठिकाना है। एक कविता उन्हीं क्षणों में जब मैंने अपने राज्य को छोड़ा। कविता का शीर्षक है मन गीला नहीं होता। कभी कभी बीती बातें, गांव की खट्टी मीठी यादें मन को गीला कर जाती हैं। एक गांव है, अभी भी है, और मैं जाता हूं। कभी कभी बीती बातें, गांव की खट्टी मीठी यादें मन को गीला कर जाती हैं। जाने वह कौन सा पहर था जब शहर से नौकरी की चिट्ठी आई। तुझसे क्या छुपाना, मेरा मन उड़ान करने की कोशिश में था, जैसे परकटा परिंदा पिंजरे से भाग जाना चाहता। तुझसे क्या छुपाना, मेरा मन उड़ान भरने की कोशिश में था, जैसे परकटा परिंदा पिंजरे से भाग जाना चाहता हो, अपनों की बातों से सीना जो जला था मेरा। अपनों की बातों से सीना जो जला था मेरा, जैसे अलाव में अधिक भुन गए हो कच्चे आलू, रात आंखों में ही काट दी थी मैंने। कुएं की जगत पर हाथ मुंह धोए थे आने के वक्त। मुझे याद है मेरी हाथों से चिपक कर
न जाने कितनी दूर लुढ़का था वो पीतल का लोटा, मानो कह रहा हो तुम्हें तनिक की परवाह नहीं हमारी। तुलसी मैया ने अपने छांव का आंचल मेरे ऊपर बढ़ा दी थी, जुग जुग जियो पर जल्दी आना। आंखों के कोरों पर ठिठके हुए आंसू देखकर मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया। डर था कहीं आंसुओं के बहाव में मैं भी न बह जाऊं। घर के दरवाजे पर लगे बेल के पेड़ से कुछ ज्यादा ही लगाव है। अपने ही हाथों से रोका था इसे मैंने। पत्तियां हवा के झोंकों संग बार-बार कहती रहीं, अपना ख्याल रखना, जल्दी आना। पर शायद मैंने सोच ही लिया था, अब नहीं आऊंगा। सुरमई आकाश तले ताड़ और झरबेरियों वाली पगडंडी पर अपना सामान लिए मैं चल पड़ा बचपन की यादों को निहारते। वही अमरूद बागान, वही पाठशाला, वही डॉक्टर बाबू की क्लिनिक और पुराना डाक बंगला जो मेरे मन की तरह जीर्णशीर्ण है। वही अमरूद बागान, वही पाठशाला, वही डॉक्टर बाबू की क्लिनिक और पुराना डाक बंगला जो मेरे मन की तरह जीर्णशीर्ण है। भागते टमटम के टापों के बीच बचपन की सारी यादें गुजर रही थी, मानो फिल्म चल रही हो। भागते टमटम की टापों के बीच बचपन की सारी यादें गुजर रही थी, मानो फिल्म चल रही हो। रेलगाड़ी की आखिरी सीटी के साथ लगा, मानो मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी, मन शिथिल हो रहा था। वर्तमान और अतीत के बीच में झूल रहा था। दरवाजे से खड़े होकर एक ही नजर में आखिरी बार पूरे गांव को निहार लेना चाहता था, जो धीरे धीरे रेल की पटरियों के बीच ओझल हो चला था। मन के सारे बांध मानो टूट गए हो। सारा चेहरा आंसुओं से भीग गया। अब तो आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं। गुस्सा धीरे धीरे टूट रहा था और मन भी हो गया। आज कई साल बीत गए, गांव के दर्शन हुए। आज कई साल बीत गए, गांव के दर्शन हुए। अकेलेपन से मेरी हालत अजीब, जैसे गांव के बाहर वो पुरानी मस्जिद। सोचता हूँ गांव से रिश्ता कभी छूट नहीं पाएगा। सोचता हूँ गांव से रिश्ता कभी छूट नहीं पाएगा। भले ही वह यादों का ही हो, कुछ खास रिश्ता तो है हमारा। वरना यूं ही किसी के लिए मन जीना नहीं होता, वरना यूं ही किसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। जैसे आपका नाम नवनीत है, वैसे ही कविता भी है, क्योंकि आपने कहा कि मन गीला नहीं होती। जब मन गीला नहीं होते तो ऐसा कविता पैदा होने के लिए संभावना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। अब हम लोग सुनेंगे मैथिली भाषा में कविता पाठ, जिसके लिए हमारे बीच में उपस्थित है प्रख्यात कवयित्री मैथिली की भावना झा जी, जो मैथिली और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखती है। और उनकी आपकी अनेक कविताएं हंस, पाखी, कथादेश, वनिता, प्रभात खबर इत्यादि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। और इन शब्दों के साथ आप इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी कविता पाठ मैथिली भाषा में प्रस्तुत कीजिए। सबको मेरा प्रणाम और साहित्य कार्यक्रम का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और ये मेरी पहली कविता है, चरित्रहीन स्त्री, मैथिली में। ये उस आजकल की स्त्री के बारे में ये कविता है जो अपने दम पे जो अपना रास्ता खुद तलाशती है और उसके बदले में बहुत सारी लांछनाओं को भी झेलती है और स्वीकार भी करती है। तो कविता सुनिएगा। चारों दिस सुनवा में आग रहल उन्मुक्त अट्टहासक स्वर। चारों दिस सुनवा में आग रहल उन्मुक्त अट्टहासक स्वर। आतंक पैसल परोपट्टा के लोक के देखाया जा रहल ओ स्त्री जेकरा चरित्रहीन उछन्नर कही खिदास कयल जाइ छै। उछन्नर मतलब अनुशासनहीन और खिदास मतलब निंदा।
बढ़त जा रहल ओकर आइ हेंज बढ़त जा रहल ओकर मिटा रहल अछि सबटा लिखला हा अपन कपार सँ दौड़ी रहल ओ 34 निर्बाध रूपे नव सर्जनक नव परिभाषा गढ़ि के लेल नहीं चाही कोनो तफ्तीश आ नहीं सिखलक ओ कल्पक नहीं चाही कोनो तफ्तीश आ नहीं सिखलक ओ कल्पक आब नहीं सुनबा देखबा में आयल हृदय के चिरैत ओकर आतरनादक दृश्य स्वीकार नहीं छै ओकरा आब मात्र इच्छा पूर्ति के लेल डेंगाया जयबाक गहन रात्रि में स्वीकार नहीं छै ओकरा आब मात्र इच्छा पूर्ति के लिए डेंगाया जयबाक गहन रात्रि में और नहीं आवश्यकता बुझ पड़े छै नुकबै के दिनक इजोत में अपन देहक आ मोनक लालसा के अकारणे तहिया कियाक कोनो यंत्रणा अपन मोनक बहैत कोनो संवेदना अकारणे तहिया कियाक कोनो यंत्रणा अपन मोनक बहैत कोनो संवेदना पर छहर बनेबाक करैत प्रतिकार छहर मतलब बांध ओ स्त्री आब कऽ रहल शंखनाद ओ स्त्री आब कऽ रहल शंखनाद हाँ बिना कोनो उच्चार के हमर अस्तित्व संपूर्ण अछि हाँ बिना कोनो उच्चार के हमर अस्तित्व संपूर्ण अछि बिना कोनो बेगरता और ग्लानि के आह्लादित भऽ कहब हम आगमन के या छी हमर असल संतुष्टि या छी हमर असल संतुष्टि कहैत भवा के हंस रहल छथि ओ चरित्रहीन स्त्री दूसरी कविता है कि एकरे विमर्श कहल जाए छै आजकल स्त्री विमर्श बहुत ज्यादा उसके बहुत सारे जो विद्रूप रूप भी सामने आते हैं या उसमें अच्छा वाला विमर्श तो हो जाता है उसी पे कुछ दोनों कविताओं में थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिल सकता है कि एकरे विमर्श कहल जाए छै वर्तमान समय चर्चा में रहबाक आते हमहूँ पीटी रहल छी ढोल विमर्शक विकासक तथा कथित प्रगतिशीलता आ नारीवादक जे तगमा लेबाक लेल अछि तत्पर जे तगमा लेबाक लेल अछि तत्पर जुटल अछि सब दैत हेंज में आ जे देखाइत ओझरायल अपने में लगबैत अछि कृष्यान भऽ चक्कर बनबै के लेल कागज सर्टिफिकेट टिपल रहे जाहि में स्पष्ट रूपे टिपल रहे जाहि में स्पष्ट रूपे मौन वचन आ कर्मक उद्घोष संगहि खुशियाही योग्यता के जय जयकार संगहि खुशियाही योग्यता के जय जयकार मुदा कियाक भऽ जाइत छी नतमस्तक मुदा कियाक भऽ जाइत छी नतमस्तक अबिते आँखिक सोझा ओहि स्त्री के जे हमरा लेखे रही एकटा मूर्ख सन जे हमरा लेखे रही एकटा मूर्खे सन वह स्त्री जे तनने छथि सबटा भार अपन तनुक कान पर देवालक काटी जेका अपन तनुक कान पर देवालक काटी जेका झुकल कन्ये टेढ़ परंच बिना कोनो कुंठाक ओ नहीं पढ़ि पबै छथि विमर्शक एकौटा आखर ओ नहीं पढ़ि पबै छथि विमर्शक एकौटा आखर नहिए खेला अबैत छनि सब मातक खेल अकस्मात सोझा आबि हुनकर ठाढ़ होइ के अमास हुनका देव प्रणाम जेना होती स्थिति प्रज्ञ सब परिस्थिति में जेना प्रयोजन वा सेहनता से होती अनभिज्ञ नहीं बुझलनि जे अपना पर अधिकार देला से अधिकार होना होबाक शंका लागल रहि जाइत छै नहीं बुझलनि जे अपना पर अधिकार देला से अधिकार हनन होबाक शंका लागि जाइत छै जे बंधन तोड़बाक लेल बेकल रहैत छी हम सदिखन जे बंधन तोड़बाक लेल बेकल रहैत छी हम सदिखन ओ ओकरे मजबूत करबाक फिराक में रहै छथि भरि दिन अफस्यान ओ ओकरे मजबूत करबाक फिराक में रहै छथि भरि दिन अफस्यान हम हारै छी बेर बेर अनेकहु बेर आ ओ कौतुक संग देखि के विमुसी बाजी उठै छथि जा कहाँ बुझलिए कहियो जे एकरे विमर्श कहल जाइत छै तीसरी कविता है मनोरोगी जतै अहाँ देखबा चाहैत छी हमर आँखि के नैना विराम कहैत जतै अहाँ देखबा चाहैत छी हमर आँखि के नैना विराम कहैत ओहि ठामक दृश्य हम हठात कस के बंद कऽ लै छी अपन आँखि
हम हटा कस के बंद कॉलेज छी अपन आए हमर नजर के सोझा आबि जाइत अछि खून खुनामे भेल देह ओकर चित्कारक स्वर अधराति में हमर नजर के सोझा आबि जाइत अछि खून खुनामे भेल देह ओकर चित्कारक स्वर अधराति में अविकल भ जाइत अछि आत्मा अविकल भ जाइत अछि आत्मा आ घोरन जकाँ चले लगैत अछि सबटा अंग पर कि या भेटैत छै स्त्री होयबाक उपहार कि या भेटैत छै स्त्री होयबाक उपहार कहल गेल वर्णांधता के शिकार भ रहल छी कहल गेल वर्णांधता के शिकार भ रहल छी बा कोनो आन कारणे ई विरक्ति के भैसक नहीं त एतेक मनोरम स्थल में बर्फ से झाँपल उज्जर पहाड़ सँ खतरा पजरे केकरा देखाई छै नहीं त एतेक मनोरम स्थल में बर्फ से झाँपल पहाड़ सँ खतरा पजरे केकरा देखाई छै एतेक स्वच्छ परिवेश में घुटन के तो कोनो प्रश्न नहीं उठै छै एतेक स्वच्छ परिवेश में घुटन के कोनो प्रश्न कहाँ उठै छै वितंडा करे के स्वभाव भ गेल अछि वितंडा करे के स्वभाव भ गेल अछि कोनो मनोचिकित्सक के पूछे पड़त नहीं तो यात्रा से भय होयबाक कोन कारण हम सोचैत रहलहुँ कि ठीके हम मनोरोगी छी धन्यवाद भावना झा जी अब now we shall listen to Punjabi poetry for which we have in our midst Dr. Karanjit Singh जिनका whose pen name is Karanjit Komal and Karanjit Komal ji has completed his PhD in Punjabi literature from University of Delhi and he is from Moga from Punjab but currently living in New Delhi and is working as a guest faculty in Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College Delhi and his first poetry collection Barkat which was published in 2019 is such a great work whose copies have been sold in a extensive manner. More than 12,500 copies have been sold so far, and it has gone for the 7th edition. So congratulations, Karanjit ji. Now I request you to kindly present your poetry in Punjabi. शुक्रिया सर बहुत बहुत साहित्य अकादमी का शुक्रिया जिन्होंने आज ये मौका दिता मैंने इतने लगता है कि जिन्हें भी जाने मेरे नाल कवि साथी जन बैठे हैं ते लगभग सारे शायद पंजाबी समझ आती होगी ते मैं मैंने तालियां कवितावां समझ आई मैं अपना खदशा सीगा कि मैथिली समझ नहीं आनी पर मैंने ऐ लग्या कि साहित्य अकादमी एक बहुत अच्छा अवसर दे रही है सानू सब नू कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਆਏ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਵੀ ਆਏ और सर बहुत अच्छा लगा नीरव जी ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ गौर करे ता आपा हाँ बस तेरा मेरा नाम किथे है इश्क च एक भरोसा है बस इश्क च शक दी थां किथे है गौर करे ता आपा हाँ बस तेरा मेरा नाम किथे है इश्क च एक भरोसा है बस इश्क च शक दी थां किथे है ते जीवन पैंडा जीवन मंजिल जीवन पैंडा जीवन मंजिल जीवन दुख सुख कथा कहानी जीवन पैंडा जीवन मंजिल जीवन दुख सुख कथा कहानी इत्थे ही ने होंदे तौलर अगला कोई ग्रां किथे है ते सच दे रस्ते औखे रस्ते सच दे रस्ते औखे रस्ते बहुते चुनदे सौखे रस्ते सच दे रस्ते औखे रस्ते बहुते चुनदे सौखे रस्ते दसिया सी तैनूं धुप ही धुप है ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਚਾਨਕ अचानक अचानक वापर जावेगा प्यार
दिल दी किसे नुक्कर चों रिसन लगेगी नफरत अचानक। अचानक वापर जावेगा प्यार, दिल दी किसे नुक्कर चों रिसन लगेगी नफरत अचानक। ते अचानक मिल पैणगे विछड़े हुए, बहाना कोई भी बने, कारण कोई भी होवे, अचानक विछड़ जाणगे मिले हुए। ते धोखे दी किसे भूमिका तो पर्दा उठेगा अचानक। धोखे दी किसे भूमिका तो पर्दा उठेगा अचानक। रिश्तियां दे पुल टुट जाणगे ते अचानक बागी मन बगावत ते उतर आउणगे। अचानक बागी मन बगावत ते उतर आउणगे। अखां च उतर आएगी क्रांति दी इबारत अचानक। ते सारियां उम्मीदां ते पानी फिर जाएगा जदों। सारियां उम्मीदां ते पानी फिर जाएगा जदों। ओ मिल जाएगा जिसने मिलना ही सी, मुस्कुराउंदियां होया अचानक। ते बचदियां बचाउंदियां अचानक बूटां हेठ मसली जाएगी कीड़ी। बचदियां बचाउंदियां अचानक बूटां हेठ मसली जाएगी कीड़ी। मन जिवें इच्छावां दे पार हेठां दब जांदा है। मन जिवें इच्छावां दे पार हेठां दब जांदा है। शरीर दियां लोड़ां हेठ जिवें मंधोली जांदी है आत्मा अचानक। ते अचानक मिल पवेगा रब अल्लाह परमात्मा प्रभु। अचानक मिल पवेगा रब अल्लाह परमात्मा प्रभु। तमाम वाद विवाद ढेरी हो जाएंगे। ख्वाहिशां दी फहरिस्त राख हो जाएगी। सुन पसर जाएगी अचानक। ते अचानक दस्तक देगी कविता ते तुसी घर नहीं मिलोगे। अचानक दस्तक देगी कविता ते तुसी घर नहीं मिलोगे। अचानक बीत जाएगी जिंदगी। रीझां दी सूई दा नक्का टुट जाएगा। तितली दे खंभां तो रंग भुर जाणगे। हत्थां चों खुशबू दे भेद उड़ जाणगे। अचानक जीना महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक छोटी कविता मेरे इत्थे दोस्त आए हुए हैं, मैं उन्हां दे नाम करदा है। उन्हां दे कहण च उन्हां ने कहा सीगा कि एक कविता तुसीं जरूर सुणाओ। दिल्ली यूनिवर्सिटी दे स्कॉलर मेरे नाल आवाज दे झुमके, आवाज के झुमके। लै परत आया हां उन्हां गलियां विच। लै परत आया हां उन्हां गलियां विच जिथे तेरी आवाज दे झुमके पा हवा बदलां नूं सैनक मारदी है। लै परत आया हां उन्हां गलियां विच जिथे तेरी आवाज दे झुमके पा हवा बदलां नूं सैनक मारदी है। जिथे सारे जग तो ओले रुत्तां रूप वटाउंदियां ने। जिथे सारे जग तो ओले रुत्तां रूप वटाउंदियां ने। जिथे फुल्लां दी किस्मत विच तेरा नाम लिखिया गया सी। जिथे फुल्लां दी किस्मत विच तेरा नाम लिखिया गया सी। जिथे कविता महज लफ्जां दा जादू नहीं, तुरदी फिरदी तू हुंदी है। जिथे कविता महज लफ्जां दा जादू नहीं, तुरदी फिरदी तू हुंदी है। जिथे तेरे पैरों धूड़ उड़दी है ते तारियां दा ध्यान टुटदा है। लै परत आया। बहुत बहुत धन्यवाद करणजीत कोमल जी। शायद आजीष शर्मा जी मेरे साथ शायद सहमति देंगे कि एक बार हमारा परमादरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा एक कविता में, पहाड़ कितना भी ऊंचे जाएगा लेकिन उतना ही अकेलापन महसूस करते हैं। जितना भी पहाड़ जो आसमान को छूने के लिए कोशिश करता है लेकिन उतना ही अकेलेपन महसूस करती है। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। अथ संस्कृत भाषायां कविता पठनं कर्तुम् अस्माकं मध्ये उपस्थिताः मान्याः भगिन्या डॉक्टर संगीता शर्मा महोदया। डॉक्टर संगीता शर्मा जी holds master's degree in Sanskrit, yoga, philosophy and so on. And she has completed her B.Ed and as well as doctoral degree in Sanskrit and worked as an assistant professor in NCERT and teaching of Sanskrit in CIET's, that is Prime Minister's E-Vidya program also. Currently working as a guest faculty in Jamia Millia Islamia, New Delhi, and she has done and she has presented
number of research papers on Ramayana and yoga in national and international seminars, and published many articles in the different journals. Now I request Sangeeta Sharma ji to kindly present her poetry in Sanskrit. So that's a challenge actually, because I don't know Maithili, I don't know Punjabi. I really love the way they present it, and I was trying hard to understand, right? So I will try that I will put the essence of the poem in front of you so that you can correlate what I'm talking about. So मेरे साथ एक समस्या है कि मैं कवि नहीं हूँ, कवित्री बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ओवर थिंकर हूँ। और ओवर थिंकर होने के नाते जो मुझे आता है वो मैं लिख देती हूँ, फिर जब दोस्तों को या गुरुजनों को सुनाती हूँ तो कहते हैं ये तो कविता है। सो वैसा वाला कवि हूँ, तो मुझसे ज़्यादा अपेक्षाएं मत कीजिए ना, बहुत कमाल कवि नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं महिला हूँ, मेरी पीएचडी जो है वाल्मीकि रामायण में जो नारी है उसमें आज की जो नारी है उनका कंपैरेटिव अध्ययन रहा, तो वो रामायण की नारी देखने के बाद मुझे लगा हमारे साथ सही नहीं हो रहा है ना। तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो ज़्यादातर चिंतन है वो नारी की जो जीवन के अंदर जो भी घटता है वो, और दूसरा क्योंकि मैं फिलोसफी पढ़ाती हूँ जामिया मिलिया में संस्कृत के अंदर, तो जीवन दर्शन के प्रति मेरा चिंतन हमेशा चलता रहता है कि हम जी क्यों रहे हैं, हमें घमंड क्यों है, हमें गुस्सा क्यों है, हमें हंसी क्यों है। तो इस तरीके के भावों से बंधी हुई 3 कविताएं मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगी, और मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा भी लूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप रसपान अच्छे से करें, तो इसलिए हिंदी अंग्रेजी भाषा का साथ साथ मदद लेके आप लोगों के सामने कविता को रखूँगी। तो पहली कविता, और एक और तीसरी प्रॉब्लम और है मेरे साथ कि मैं ना कविता लिख देती हूँ, भाव लिख देती हूँ, पर शीर्षक फिर मुझे बाद में इकट्ठा करना पड़ता है, मुझे नहीं आता, बड़ा मुश्किल है शीर्षक रखना। तो पहली कविता का शीर्षक सरलता से है नारी, बात खत्म। तो ये जो कविता है ना, ये कब लिखी गई, जब एक बार कहीं मैं ऑफिस में काम कर रही थी और सब बैठे हुए थे, तो एक एचओडी बोलते हैं कि बेटा जरा खाना परोस देना, हम सब खाना खा रहे थे, तो मैंने बेटा संगीता खाना परोस देना, तो मैंने देखा मैंने पीएचडी कर ली, तो मैं तो कॉलेज में यहाँ पे खाना परोसने के लिए क्यों कह रहे हैं लोग, और बाकी प्रोफेसर भी थे, पर मैंने सर की तरफ देखा, लड़कियाँ ये काम करते हो अच्छी लगती है, ये तो तुम्हारा ही काम है ना। मैंने कहा हाँ परोस दिया, लेकिन कविता तो वो है कि औरत हो ना, आज की भी डेट में आप पीएचडी कर लो, 3 MA कर लो, बीएड कर लो, पेपर छाप लो, पर तुम औरत हो, तुम औरत क्यों हो, वो है कविता। अच्छा व्यंग है, मैं कोशिश करूंगी आपके सामने इसको समझाने की। जी, नारीणां धनानि भवन्ति गतो उच्छिष्टानि परिधौत वस्त्राणि तासां चरित्रमेव। नारीणां धनानि भवन्ति गतो उच्छिष्टानि परिधौत पात्राणि तासां चरित्रमेव। चमका हुआ फर्श की बात हो रही है। चिक्कणं श्रृणं गृहांगनं तासां पीडा पूर्वं स्मितमेव। विमल वस्त्राणि यानि वक्तुं न प्रभवन्ति, यानि वक्तुं न प्रभवन्ति कर्मवारं कतिवारं तानि घर्षितानि इति। नारीणां संपत्ति, नारियों की संपत्ति देखिए क्या है, मध्य भाग व्यथा, कमर दर्द। नारीणां संपत्ति मध्य भाग व्यथा या प्रायेण प्रत्येकं नार्या संभवति। हर वक्त कोई केनापि कारणेन शरीरं सीव्यते, घुस गया है शरीर में कहीं ना कहीं, क्या प्रतिदिनं क्षुरिकया लूनः अनलेन च दग्धः करः, आग में कभी कभी हाथ जल रहा है रोज या कट रहा है। नारीणां निधि अस्ति अंगने चंचलो बालः खट्वे शयतो वृद्धः पाकशालात् निस्सृतः सुरभि। और अब आखिरी तंज, अद्यापि नारी रूपा जीवसी त्वमिति विद्यालये कृतं अध्ययनं महाविद्यालये प्रस्तुता टिप्पणी कार्यालये दर्शिता दक्षता च त्वं नारीं न परिचाययन्ति। तो ये पहली कविता रही। दूसरी कविता जो है वो जीवन दर्शन के बारे में है कि कैसे ये जो जीवन है, हम जीवन में कैसे भेड़ हो गए हैं, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। तो गड्डरी का जो है वो भेड़ है, इसको प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है सत्यम। बहुधा जीवनम गड्डरिका प्रवाह एव प्रतीयते।
अहमपि क्वचित् नेशी भवामि, मैं भी कभी भीड़ होना चाहती हूँ। जने कस्मिंश्चित् प्रयाणं प्राप्ते मृत्युं प्राप्ते सद्य वाक्यमात्रं विसृज्य मानवा अग्रे सरन्ति। करतलयो नमस्कार मुद्रा मदिरामोदो मुखे यथा। पुरातन परंपरा आकर्षणं क्लिश्नाति नूतन समये दुःखे दूनता वरम शाश्वत सुखादपि। अब कैसे बुद्ध होने का और सामान्य मनुष्य होने का संघर्ष है वो इस पैरा में बताया गया है। इमाम एह परगति लीलाम वीक्ष्य, वीक्ष्य मतलब देखकर, इमाम एह परगति लीलाम वीक्ष्य क्वचित सिद्धार्थो बुद्धो बभूव। संसारो दुःखमयो अस्ति स्थास्यति च, परंतु न वयं बुद्धत्वमाप्ताः न च मेषतां लब्धा। न हम बुद्ध हो पाए न हम भेड़ हो पाए। एवं कर्षण विकर्षणाभ्यां प्रतिदिनम् एवमेव धर्षिता वयम्। क्षतानि लभन्ते भावाः आत्मा अपि रुधिराप्लुति भवति सत्यमिदम्। जीवनं सारणीयमेव बुद्धत्व मेषत्वयोः संघर्षः प्रचलिष्यति अनवरतं प्रयाणं यावत्। मृत्यु यावत् ये संघर्ष चलता रहेगा। तो ये जो तीसरी कविता है, पता नहीं मैं कितना भाव रख पा रही हूँ, बहुत जी धन्यवाद। ये जो तीसरी कविता है ये भी स्त्रीवादी कविता है जो ये बता रही है कि औरत जो है ना, जैसे हम शादी में बोल देते हैं, ये ऐसे आई शादी में गए थे, देखो इन्हें ठंड नहीं लग रही, कितना बड़े गले का ब्लाउज पहना हुआ है, इनको ठंड नहीं लग रही। अक्सर लोग बोल देते हैं कि लड़की को तो ठंड ही नहीं लगती। ठीक है, मानते हैं हमको ठंड लगती है तो सर्दियों में खाना बनवाना छुड़वा दो ना भाई हमसे, बर्तन धुलवाना छुड़वा दो, ये उस भाव पर लिखी गई है। युवती ही शैत्यं न बाधते, युवती ही शैत्यं न बाधते यदा ताः घन शैत्ये परिमितावरणानि परिदधति। यदा ताः कस्यापि परिणयो उत्सवे पृष्ठो उन्मुक्त कंचुकं धारयन्ति। यदा ताः आरात्रं वस्त्रांचलेन आश्लिष्य स्तनन्धयं स्वयं मुक्त पृष्ठा शेरति। ताः शैत्यं हन्तः कुतो बाधते। यदा प्रखर शैत्ये तुषार शीत जलेन ताः गृहस्य सकलम् उच्छिष्टं जातं क्षालयन्ति। धोती है, बर्तन धोती है। वस्त्राणि परिष्कुर्वन्ति च आभ्यन्तराणि यावत् तदापि ताः शैत्यमुक्ता। यदा ताः कृणन्तन्ति हरितपर्णशाकानि परिपोषणाय न। यदा वयम् ऊर्णवस्त्रैः ऊष्मत्वं सेवामहे तदा ताः परिवेशयन्ति उष्णं पेयम्। न क्लेशम् आप्नोति प्रतिदिनं तासां मध्यभागः। एतावतीषु व्यापृत्तिषु शैत्ये च न स्पृशन्ति पीडाहरं प्रलेपं क्वचिदपि। ताः शैत्यं कुतो बाधते। कर्तव्यं तासां लोकं गृहं परिवारं प्रसादयितुं यतः। संगीता शर्मा महोदय, या नारीं रूपं भवता प्रदर्शितमस्ति अत्र, तत्र अपरमपि नारी अस्ति ये वेदेषु अपाला गार्गी अस्माकं पूर्वजनाः। धन्यवादः। भवद्भिः जानन्ति एव यत् नारी नाम अस्य उत्पत्त्यार्थः संस्कृतभाषायाम् अमरकोशे जानन्ति एव। अस्तु, धन्यवादः। I should explain it in English. Actually, the way that Sangeeta Sharma ji portrayed the present condition of Nari is a one side of a coin. There is the other side of coin where the magnanimity of women is so clearly explained.
explained in Vedas, right from Gargiya, Pala, Atreya, also. That's what I was trying to explain. And the meaning of the word Nari that was explained in an etymological manner in Amarkosha is totally different. So thank you so much. So I think that we could not have the chance of hearing Urdu poetry from Majid Deobandiji. He is somehow busy in somewhere, that's why he could not have. So, but one thing right from Amlan Jyoti Goswami ji say, मैं जितना भी सुन रहा था, frankly speaking, we are all multilingual people representing our own mother tongues. And because all of us, whoever is presented the poetry, right from Navneet ji, he knows many languages, including Hindi. And I did not explain that you have bunch of languages in your command, so as Komal ji, so as Bhavana ji, so as Sanskritam, Sarva Bhasharam Janani Sanskritam. So Sanskrit is the mother of all the languages. So with these few words, once again, I sincerely, from my bottom of my heart, I sincerely thank all of you for sparing your valuable time on this international, important day, that is World Poetry Day. And I sincerely thank once again all of you on behalf of Dr. K. Srinivas Rao ji, Secretary Sahitya Akademi, for coming over here. And I sincerely thank all the audience for sparing your time. And I invite all of you to the tea. Thank you so much.